Welcome student in second session from your textbook chapter number 4 structure of the atom. Today we will continue this chapter. In last session we studied about the Dalton atomic theory, discovery of electron, proton and neutron. So today we are going to discuss about the structure of atom. Dalton's atomic theory suggests that atom was indivisible, okay, which could not be broken down into smaller particles. But the discovery of subatomic particles such as electron and proton inside the atom disproved this postulate of Dalton's atomic theory. The discovery of electrons and protons suggests that atoms are divisible and they do have an inner structure. Means atom divisible भी है और उसका inner structure भी. Okay. After the discovery that atoms contain electrons and protons, it became necessary to find out how these electron and proton were arranged inside the atom. मीन्स इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद में ये फाइंड करना जरूरी था कि वो कैसे अरेंज होते हैं एटम में. जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू प्रपोज ए मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ atom. Thomson model of the atom. When J.J. Thomson proposed his model of the atom in 1903, then only electrons and protons were known to be present in the atom. Means जब J.J. Thomson ने structure of atom का मॉडल प्रपोज किया था तब सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही डिस्कवर्ड हुए थे. Okay, according to Thomson model of the atom, an atom consists of a sphere ball. Okay, an atom consists of a sphere or a ball of positive charge when negatively charged electrons embedded in it. Second, the positive and negative charges in an atom are equal in magnitude. Means जितने positive charge होंगे उतने ही negative charge होंगे. Okay, due to which an atom is electrically neutral. So because that positive or negative particles कैसे हैं same. It has no overall positive or negative charge. Thomson ने मॉडल प्रपोज किया. The colored area in the sphere contains all the positive charge in atom. Okay, means ये जो आपको यहाँ पे blackish दिख रहा है. Okay, so that part is contain positive charge. Okay, in the atom. The negatively charged electrons are spread throughout the positive charge. और जो negative charge है वो पूरे इसमें positive charge में spread होता है. Okay, so negatively charged electron are spread throughout the positive charge. So the total negative charge of electron is equal to the total positive charge of the sphere. So these equal and opposite charges balance each other, due to which an atom becomes electrically neutral on the whole. Clear this one? We can compare the Thomson model of atom to a watermelon. Okay, आप watermelon से compare कर सकते हो. The red edible part of the watermelon represent the sphere of positive charge, whereas the black seeds embedded in the watermelon are like the electron. Means जो watermelon का जो red part रहता है वो किसको show कर रहा है? वो positive charge को show कर रहा है. और whereas the black seed, और जो black seed रहते हैं उसके अंदर वो किसको represent कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को. तो आप थॉमसन मॉडल को वाटरमेलन से कंपेयर कर सकते हैं. क्लियर दिस वन? ड्रॉबैक ऑफ थॉमसन मॉडल. Okay, so drawback, it could not explain the distribution of charges and stability of an atom. Now next one, Rutherford's experiment, discovery of nucleus. Okay, Rutherford took that gold foil in this experiment. Okay, a gold foil is very thin sheet of gold. Alpha particles are much smaller than the gold atoms present in the gold foil. Okay, so now describing that Rutherford's experiment, scattering of alpha particles by the atoms of a gold foil भी कह सकते हो. Clear this one? After the discovery of electrons, protons and neutrons, it became clear that an atom is made up of these three subatomic particles. Okay, experiment were then carried out to find out how electrons, protons and neutrons were arranged in an atom. It was Rutherford's alpha particle scattering experiment which lead to the discovery of a small positively charged nucleus in the atom containing all the protons and neutrons. Rutherford's के experiment में क्या होता है? When fast moving alpha particles are allowed to strike a very thin gold foil in vacuum, it is found that so most of the alpha particle pass straight through the gold foil without any deflection from their original path. Means जो ज्यादा से ज्यादा जो अल्फा पार्टिकल्स है वो स्ट्रेट मीन्स पास आउट हो गए. ओके, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन. जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये सब स्ट्रेट पास आउट हो गए.
ओके, जो स्ट्रेट ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट पास हुए. सो नाउ अ फ्यू अल्फा पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड, और जो कुछ थे वो डिफ्लेक्टेड हो गए. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है स्मॉल डिफ्लेक्शन, एक के लार्ज डिफ्लेक्शन. ओके, सो a few alpha particles are deflected through small angles and a few are deflected through a large angle. कुछ small deflection हुआ किसी का और किसी का large deflection हुआ. Clear this one? A third, a very few alpha particles completely rebound, और जो कुछ थे very few मीन बहुत कम, वो rebound हो गए. ओके, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है ये वाले में. ओके, यहाँ से ये rebound मीन turn back. ओके, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स कंप्लीटली रिबाउंड ऑन हिटिंग द गोल्ड फाइल. जैसे उन्होंने गोल्ड फाइल को हिट किया और वो क्या हो गए, रिबाउंड हो गए. एंड टर्न बैक ऑन देयर पाथ, और वो क्या हो गए, टर्न बैक ऑन देयर पाथ. सो जस्ट एज ए बॉल रिबाउंड्स ऑन हिटिंग ए हार्ड वॉल. जैसे ही मीन्स ये गोल्ड फॉइल पे जैसे ही अल्फा पार्टिकल ने हिट किया तो वैसे वो रिबाउंड हो गए. ओके, टर्न बैक टू देयर पाथ. क्लियर दिस वन? Rutherford explains these observations in the following way. Gold foil is made up of atoms. So gold foil है वो किससे बनी हुई है, एटम से बनी हुई है. If the atoms were solid throughout their volume, then every alpha particle striking them should have changed its path and got deflected. Since most of the alpha particles pass straight through the gold foil, आपने देखा कि ज्यादा से ज्यादा मीन्स जो अल्फा पार्टिकल थे वो स्ट्रेट मीन्स पास आउट हो गए. Okay, the gold foil without any deflection. So it shows that there is a lot of empty space in the atom. तो ये मीन्स शो करता है कि एटम में मीन्स लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस रहते. दिख रहा है आपको, जैसे ये फिगर में आप देख पा रहे हो, जितने भी जो अल्फा पार्टिकल्स है वो ज्यादा से ज्यादा क्रॉस. वी नो दैट सिमिलर चार्जेस रिपेल इच अदर. So positively charged body will repel another positively charged body. Okay, so the observation that some of the alpha particles are deflected through small and large angle show that there is a center of positive charge in the atom which repel the positively charged alpha particle and deflect them from their original path. अब आपने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिव चार्ज और आप ओके और यहाँ पे सेंटर में भी पॉजिटिव चार्ज शो कर रहा है. तो जैसे ही जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के पास में आते हैं तो ये क्या करता है, रिपेल करता है. तो रिपेल की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन हो गया, किसी में स्मॉल हो गया और किसी में लार्ज डिफ्लेक्शन हो गया. क्लियर दिस वन? दिस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज नोन एज न्यूक्लियस. तो ये जो सेंटर पार्ट आपको दिख रहा है तो इसे ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं. सो दस द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय थिन गोल्ड फॉइल शोज दैट एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस इन द एटम. सेंटर में जो चार्ज है जो आपको दिख रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि न्यूक्लियस हैज द पॉजिटिव चार्ज. और आपको पता है कि सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. क्लियर दिस वन? अ वेरी फ्यू ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर टर्न बैक. अब इसमें आपने देखा कि कुछ जो पार्टिकल थे वो टर्न बैक हो गए. So a very few of alpha particles are turned back on their path. This fact cannot be explained only on the basis of repulsion due to positive charge of the nucleus. So it can however be explained assuming that the nucleus is very dense and hard. So the observation that a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil shows that the nucleus is very dense. Means वो जब rebound हो गए तो ये show करता है कि जो न्यूक्लियस है वो बहुत डेंस है और हार्ड है. ओके जैसे कि आप देखते हो कि बॉल को जब आप वॉल पे थ्रो करते हो, हिट करते हो तो वो रिबाउंड होती है. ओके क्योंकि बॉल कैसी है, हार्ड है, डेंस है. तो वैसे ही जब जो कुछ पार्टिकल जो रिबाउंड हो गए, इट मीन्स दैट जो सेंटर में जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, डेंस है और हार्ड है. क्लियर दिस वन? So the observation that a very few alpha particles completely rebound on hitting the gold foil shows that the nucleus is very dense and hard, which does not allow the alpha particle to pass through it. और मीन्स न्यूक्लियस इतना हार्ड और डेंस है कि उसने अल्फा पार्टिकल्स को अलाउ नहीं किया कि उसमें से वो क्रॉस हो सके. Clear this? We conclude that Rutherford's alpha particle scattering experiment shows the presence of a nucleus in an atom. ओके मीन्स रदरफोर्ड्स के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने शो किया कि एटम के जो सेंटर में उसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है. इट ऑल्सो गिव्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द न्यूक्लियस. और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी फाउंड हुई अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. तो फर्स्ट इसमें क्या, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज. सेकेंड, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड, क्योंकि कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो रिबाउंड हो गए थे. तो इट मीन्स दैट न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी डेंस एंड हार्ड.
थर्ड था न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द एटम as a whole. Now next one, nucleus. Nucleus is a small positively charged part at the center of an atom. Okay, means जो न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज पार्ट से और वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? एट द सेंटर ऑफ एन एटम. The nucleus contains all the protons and neutrons. Therefore, almost the entire mass of an atom is concentrated in the न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन्स है. तो जो भी मीन्स एटम का जो इंटायर मास है वो किस में कंसेंट्रेट करता है? न्यूक्लियस में कंसेंट्रेट करता है. क्लियर दिस वन? सो द इलेक्ट्रॉन्स विच आर आउटसाइड द न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो किधर फाउंड होते हैं? आउटसाइड द न्यूक्लियस. ओके, हैव निग्लिजिबल मास. सो पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन इन इट. और जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है वो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन प्रेजेंट है. और ये आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हो कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस डिटरमाइंस द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस. सो द न्यूट्रॉन्स विच आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस हैव नो चार्ज. और न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट इन न्यूक्लियस में पर उसमें कुछ भी चार्ज नहीं होता है. दे आर न्यूट्रल्स. ओके, क्योंकि वो न्यूट्रल है. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टेकन टूगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स. और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इसलिए उसे क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन. सो द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ द एटम. मीन जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसके कंपेरिजन में न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम है वो बहुत ही कम होता है. रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. रदरफोर्ड गेव ए न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम. स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे रदरफोर्ड ने एक न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम प्रपोज किया. एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज dense and very small nucleus containing all the protons and neutrons. Okay, so almost the entire mass of an atom is concentrated in the nucleus. ये भी फाउंड हुआ. सेकेंड, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. और जो न्यूक्लियस है वो किससे सराउंडेड है? निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से. सो द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग राउंड द न्यूक्लियस. और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं? रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड. और वेरी हाई स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस. सो द सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑर्बिट. और जो सर्कुलर पाथ जो इलेक्ट्रॉन्स के है ओके अराउंड द न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड द ऑर्बिट्स. थर्ड, the electrostatic attraction between the positively charged nucleus and the negatively charged electrons holds the atom together. और जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस में और जो अराउंड द न्यूक्लियस निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है पॉजिटिव और निगेटिव में, तो उसी के वजह से एटम को होल्ड करके रखते हैं. क्लियर दिस वन? नाउ नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि उसमें पॉजिटिव और जो निगेटिव चार्ज रहते हैं वो दोनों इक्वल रहते हैं. Okay, this is because the number of protons and electron in atom is equal. Clear this one? Now next one, most of the atom is empty space. और जो ज्यादा से ज्यादा जो एटम का जो स्पेस रहता है वो कैसा रहता है? एम्प्टी रहता है. Clear this one? Drawback of Rutherford's model of the atom. So a major drawback of his model of the atom is that it does not explain the stability of the atom. Means Rutherford ने एटम की जो स्टेबिलिटी है उसको एक्सप्लेन नहीं किया था. Okay, so in the Rutherford's model of an atom, the negatively charged electron are revolving around the positively charged nucleus in circular path. Okay, so according to that, the Rutherford's model, negatively charged electron revolve around the nucleus. Okay, in the circular path. So now we know that if an object move in a circular path, then its motion is said to be accelerated. Okay. मीन्स जब कोई भी मीन्स ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मोशन करते रहता है, सो जो उसका जो मोशन है उसे क्या कहते हैं? एक्सिलरेटेड. क्लियर दिस वन? सो दिस मीन्स दैट मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज एक्सिलरेटेड. तो वो भी कैसा हो गया? एक्सिलरेटेड हो गया. ओके, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ फिजिक्स, इफ ए चार्ज पार्टिकल अंडरगोज एक्सिलरेटेड मोशन देन इट मस्ट रेडिएटेड एनर्जी कंटिन्यूअसली. ओके, मीन्स जब कोई चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव करते रहता है तो वो क्या होता है? इट मस्ट रेडिएटेड एनर्जी कंटिन्यूअसली. तो उसकी एनर्जी कैसी होती है? लॉस होती है. ओके, सो नाउ इफ वी अप्लाई दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी टू द रदरफोर्ड्स मॉडल of an atom, will mean that
negatively charged electron revolve around the nucleus with accelerated motion will lose their energy continuously by radiation. मीन्स जो कंटिन्यूसली मोशन कर रहे निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन तो वो उनकी एनर्जी को लॉस करेंगे. ओके, सो दस द एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स विल डिक्रीज. तो एनर्जी जब लॉस कर रहे तो इनकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है ग्रेजुअली एंड देयर स्पीड विल गो ऑन डिक्रीजिंग. और उनकी स्पीड भी कैसी होंगी, डिक्रीज होते जाएंगी. इलेक्ट्रॉन्स विल देन बी अट्रैक्टेड मोर स्ट्रांगली बाय द अपोजिटली चार्ज न्यूक्लियस. ओके, तो मीन्स जब उनकी एनर्जी लॉस हो जाएंगी तो ज्यादा से ज्यादा मीन्स अट्रैक्ट होंगे अपोजिट चार्ज की तरफ. ओके, सो ड्यू टू विच दे विल कम मोर एंड मोर क्लोज टू द न्यूक्लियस. और जब वो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्लोज आ जाएंगे, किसके, न्यूक्लियस के आ जाएंगे. एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस. और फिर क्या होगा, जब वो ज्यादा से ज्यादा क्लोज आ जाएंगे ड्यू टू लार्ज अट्रैक्शन तो वो क्या होंगे, न्यूक्लियस में फॉल हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स. ओके, so that ultimately the electron should fall into the nucleus by taking a spiral path. Okay, तो स्पाइरल पाथ के थ्रू वो क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे इन द न्यूक्लियस. so this should make the atom very unstable. तो इसके वजह से जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा एंड hence the atom should collapse. और जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा. but this does not happen at all. We know that the electrons do not fall into the nucleus of an atom. Rather, atoms are very stable and do not collapse on their own. The Rutherford's model, however, does not explain the stability of atom. तो Rutherford's model ने stability of atom को explain नहीं किया. क्लियर, जैसे कि ये फिगर में आप देख पा रहे हो कि सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो स्पाइरल मोशन में अट्रैक्ट हो रहे हैं. ओके, क्योंकि ये कंटिन्यूसली एनर्जी को लॉस कर रहे हैं तो ये मीन्स ये कंटिन्यूसली अट्रैक्ट हो रहे इन द स्पाइरल मोशन में टुवर्ड्स द न्यूक्लियस. ओके, लाइक दिस. सो दिस एरो इंडिकेटिंग दैट सो द इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनटू द न्यूक्लियस. फॉर एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. तो जो रदरफोर्ड जो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे स्टेबिलिटी ऑफ एटम को, तो नील बोर्स ने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम एंड ओवरकम द ऑब्जेक्शन अगेंस्ट रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ द एटम, नील्स बोर गेव ए न्यू अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम इन 1913. Okay, in 1913, according to the Niels Bohr, first the electrons could revolve around the nucleus in only certain orbits. Each orbits have a different radius. Means जो इलेक्ट्रॉन है वो एक certain orbit में, means उनका orbit fix रहता है, तो वो उनके ही orbits में वो move करते हैं, revolve करते हैं around the nucleus. Okay, और each orbit और सभी orbit की जो radius है वो कैसी है, different है. Clear this one? So the electrons in each orbit have a characteristic amount of energy. So the electrons which are in orbit close to the nucleus have low energy, while those in orbit farther from the nucleus have the high energy. और जो दूर रहते हैं न्यूक्लियस से तो उस ऑर्बिट की एनर्जी हाई रहती है और जो न्यूक्लियस के पास रहते हैं ऑर्बिट उनकी एनर्जी लो रहती है. Second, when an electron is revolving in a particular orbit or energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy even though it has accelerated motion around the nucleus. और जो रिवॉल्विंग करते रहते हैं पर्टिकुलर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग करते रहते हैं तो वो उनकी एनर्जी को लॉस नहीं करते. रेडिएटेड मीन्स लॉस. ओके, तो वो उनकी एनर्जी को लॉस नहीं करते इवन दे हैव द एक्सीलरेटेड मोशन. ओके, अराउंड द न्यूक्लियस. और उनका जो मोशन है वो भले हुए एक्सीलरेटेड मोशन पर वो उनकी एनर्जी को लॉस नहीं करते. सो एंड सिंस द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लॉस एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन सर्टन परमिटेड ऑर्बिट्स, दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. और जब उनकी एनर्जी लॉस नहीं होंगी और एक सर्टन ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते तो दे डू नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. हैंस द एटम रिमेन्स स्टेबल. तो एटम कैसा होगा, स्टेबल होगा. सो circular path or orbits around the nucleus are also known as energy levels or electron cell. Remember that. Clear this one? Next, Bohr's model of the atom. The present concept of atom was given by Niels Bohr. So the Bohr's model of the atom can be described as, जो present concept atom की read करते हैं तो वो किसके द्वारा दी गई है, Niels Bohr ने. First, an atom is made up of 3 particles, electrons, proton and neutrons. तो एटम जो है 3 पार्टिकल से बना हुआ है. दैट पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके, इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है वो पॉजिटिव चार्ज, वेयर एज न्यूट्रॉन्स है वो नो चार्ज. दे आर
neutral. So due to the presence of equal number of negative electrons and positive protons, the atom on the whole is electrically neutral. Second, the protons and neutrons are located in a small nucleus at the center of the एटम. सो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ लोकेटेड होते हैं? स्मॉल न्यूक्लियस में. और न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? एट द सेंटर ऑफ द एटम. ये जो आपको प्लस साइन दिख रहा है, मतलब इसमें क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है. ओके, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, तो न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज. तो न्यूक्लियस कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है. ओके. थर्ड, the electrons revolve rapidly round the nucleus in fixed circular path called energy levels or cell. Clear this one? So ये जो आपको दिख रहे हैं ये क्या है? एनर्जी लेवल है. ओके, और आप उसको इलेक्ट्रॉन सेल भी कह सकते हो. ये जो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4, सो दीज आर व्हाट? एनर्जी लेवल. क्लियर दिस वन? सो इसी मीन्स फिक्स, ये उनके फिक्स ऑर्बिट रहते हैं, तो इसी फिक्स ऑर्बिट में मीन्स इलेक्ट्रॉन रैपिडली मूव करते रहते हैं. जो इलेक्ट्रॉन 1 ऑर्बिट में, तो 1 में ही वो रिवॉल्व करेंगे. जो 2 में, वो 2 में रिवॉल्व करेंगे. जो 3 में है, वो 3 में रिवॉल्व करेंगे. और जो 4th एनर्जी लेवल में, वो 4th में ही रिवॉल्व करेंगे. क्लियर दिस वन? द एनर्जी लेवल और सेल्स आर रिप्रेजेंटेड इन 2 वे, आइदर बाय द नंबर 1 2 3 4, ओके, 5 6, एंड or by the letters K, L, M, N, O, P. Okay, so the energy levels are counted from the center to outwards. Fourth one, there is a limit to the number of electron which each cell can hold. Means ये सभी cells में एक limit रहती है कि वो कितने electrons को hold करके रख सकता है. Okay, for example, the first energy level, अब ये first energy level आपको जो दिख रहा है, okay, तो ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है मीन्स के सेल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन. ये जो आपको दिख रहा है ये कितने? 2 इलेक्ट्रॉन्स को ही फर्स्ट सेल है जो होल्ड कर सकता है. सेकेंड एनर्जी लेवल मीन्स एल सेल कैन होल्ड मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन. ये जो आपको राउंड डार्क जो दिख रहा है ब्लैक, तो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है. 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मीन्स मैक्सिमम ये 8 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकते हैं. थर्ड एनर्जी लेवल मीन्स दैट एम सेल कैन होल्ड ए मैक्सिमम ऑफ 18 इलेक्ट्रॉन. अभी जो थर्ड है वो 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है. एंड फोर्थ एनर्जी लेवल मीन्स दैट एन सेल, ओके, कैन होल्ड मैक्सिमम ऑफ 32 इलेक्ट्रॉन्स. और जो फोर्थ वाली सेल है उसमें मैक्सिमम 32 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकते. क्लियर दिस वन? नाउ ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विथ ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. और ये सभी एनर्जी लेवल जितने भी 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, सो दे हैव फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्लियर दिस वन? द सेल नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस, और जो सेल बहुत पास रहती है न्यूक्लियस के मीन्स दैट वन सेल, ओके, मीन्स के सेल, ओके, हैविंग मिनिमम एनर्जी, एंड द सेल फारदेस्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जो सेल सबसे दूर रहती है फ्रॉम द न्यूक्लियस हैविंग द मैक्सिमम एनर्जी. जो दूर रहती है न्यूक्लियस से तो उसमें ज्यादा एनर्जी रहती है, और जो न्यूक्लियस के पास रहती है उसमें कम एनर्जी रहती है. क्लियर दिस वन? सिक्स्थ वन, there is no change in the energy of electron as long as they keep revolving in the same energy level and the atom remains stable. There is no change in the energy of electrons, मीन्स ये जो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी उसमें कोई भी चेंज नहीं होता एज लॉन्ग एज देर कीप रिवॉल्विंग इन द सेम एनर्जी लेवल. और जबकि वो सेम एनर्जी लेवल में रिवॉल्व करते रहते तो भी उनकी एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं होता. एंड द एटम रिमेन्स स्टेबल, और जो एटम रहता है वो कैसा रहता है? स्टेबल रहता है. क्लियर दिस वन? के द चेंज इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन इट जम्प्स फ्रॉम ए लोअर एनर्जी टू द हायर एनर्जी लेवल, और व्हेन इट कम्स डाउन फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, तब इनकी एनर्जी वो चेंज होती है. व्हेन एन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, इट जम्प्स फ्रॉम ए लोअर एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो वो क्या करता है? फ्रॉम ए लोअर एनर्जी लेवल टू हायर लेवल एनर्जी में मूव करता है. ओके, एंड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन कम्स डाउन फ्रॉम ए हायर एनर्जी लेवल टू ए लोअर एनर्जी लेवल, सो इट लॉसेस एनर्जी. और जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर की तरफ जाता है तो उसकी एनर्जी को लॉस करता है. क्लियर दिस वन? और दिस इज द प्रेजेंट कंसेप्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ द एटम. थैंक यू.